چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی آپ کا نام؟ عبدالعزیز اتاری۔ عبدالعزیز اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد شاہزیب مرزا۔ محمد شاہزیب مرزا۔ اور آپ کا نام؟ حسنین اتاری۔ حسنین اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد مجتبیٰ۔ محمد مجتبیٰ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تمام بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی کسی آیت کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم وقف کے قواعد پڑھ رہے تھے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی آیت کے اختتام پر یا کسی آیت کے درمیان میں وقف کریں گے تو کیا اس میں کوئی چینجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور زبر، زیر، پیش یعنی حرکات کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ کلمے کا آخری حرف اگر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 2 زیر اور 2 پیش کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اگر کلمے کے آخری حرف کے نیچے 2 زیر ہوں یا کلمے کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں تو انہیں بھی زبر، زیر، پیش والے حرف کی طرح ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن کر دیں گے۔ اب اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ گول دائرے کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے 2 زیر ہیں، تو اسے ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ یعنی جب ہم وقف کریں گے تو اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے شہرن، شہرن، آگے وقف، آگے وقف، شہر، شہر، شہر۔ شہر۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال میں طا وقف مطلق کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، تو اسے ہم وقف میں کیا کریں گے؟ ساکن۔ ساکن کریں گے، یعنی اسے پڑھیں گے شیئن، 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 شیئن،
आगे वक्फ, आगे वक्फ, शई, शई, शई। शई। फिर इसके बाद अगली मिसाल में तो वक्फे मुतलक की अलामत है और इससे पहले वाले हर्फ वाव पर दो पेश हैं, तो इसे हम वक्फ में क्या करेंगे? साकिन, साकिन करेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे लहवुन, लहवुन, लहवुन। लहवुन। आगे वक्फ, आगे वक्फ, लहव, लहव, लहव। लहव। आखिरी में वाव की आवाज आएगी लेकिन उस पर हम कोई एराब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जी। लहवुन। लहवुन। आगे वक्फ, आगे वक्फ, लहव, लहव, लहव। लहव। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद अगली मिसाल में गोल दायरा वक्फ की अलामत है और इससे पहले वाले हर्फ रा पर दो पेश हैं, तो इसे भी हम साकिन कर देंगे, ठीक है? जी। यानी कदीरुन। कदीरुन। आगे वक्फ, आगे वक्फ, कदीर। कदीर। समझ में आया बच्चों? जी। अब आगे बढ़ते हैं आज की आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम सूरह लैल की दूसरी आयत पढ़ चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह लैल की तीसरी आयत सीखेंगे, ठीक है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़-ज़कर वल-उन्सा। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और ज़बर वाले हर्फ को हम कहते क्या हैं? मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खेन से, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खेन से, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है खा। क्या है? खा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और ज़बर वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खेन से, बगैर झटका दिए। तो इन तीनों को हम बगैर खेन से, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है? जी। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको हुरूफ मुस्तालिया के बारे में बताया था, यानी वो हुरूफ जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, और वो हुरूफ 7 हैं। कितने हैं? 7। उनमें से 2 हुरूफ यहाँ पर मौजूद हैं, एक है खा और दूसरा है कौफ। तो प्यारे बच्चों, जब हम इनकी अदायगी करेंगे तो इन्हें मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? दाल। अब दाल उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ा। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है? जी। और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, यानी दाल में सीटी की आवाज नहीं आएगी और जा में सीटी की आवाज आएगी। और जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में फर्क किस तरह होगा कि दाल को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया में से है। अब यहाँ दाल पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं, इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। और मुशद्दद हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक। यानी यहाँ दाल पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ कौफ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है? जी। अब यहाँ दाल पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है काफ। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वाव। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इन सब को हम बगैर खेन से, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है? जी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ ये भी देख लें कि काफ उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है।
एक हर्फ है काफ और दूसरा हर्फ है कौफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। और जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो मैंने आपको अभी ही बताया कि कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे काफ जबर का, काफ जबर का, काफ जबर का, काफ जबर का, और इसे पढ़ेंगे कौफ जबर का, कौफ जबर को, कौफ जबर का। कौफ जबर को। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। अब इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जज़म वाले हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ेंगे तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लाम को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। क्या है? हमजा। हमजा। और इस हमजा पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ को भी जबर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे हर्फ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हमजा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, और इसे पढ़ेंगे आइन जबर आ, आइन जबर आ, आइन जबर आ। आइन जबर आ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। अब यहाँ पर नून है साकिन। फिर इसके बाद आ रहा है सा। और प्यारे बच्चों आपको बताया था मैंने जब आपको नून साकिन के कवायद पढ़ाए थे कि नून साकिन के बाद जब हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर नून साकिन में गुन्ना होगा। क्या होगा? गुन्ना। गुन्ना होगा, यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी हुरूफ इक्फा में से सा आ रहा है तो यहाँ पर भी हम नून साकिन में गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ सा पर आप जो हरकत देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा जबर। खड़ा जबर। और खड़ा जबर को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद गोल दायरा यानी आयत के मुकम्मल होने का निशान है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी ये निशान हो वहां हम वक्फ करते हैं, यानी आवाज और सांस दोनों को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे इस आयत के कवायद मुकम्मल हुए। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस आयत की मिलकर हिजे करते हैं। ठीक है जी। वाव जबर वा, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, मीम अलिफ जबर मा, वमा, वमा, खा जबर खा, क़ा जबर क़ा, लाम जबर ला, लाम जबर ला, खला, क़ला, कौफ दाल जबर कज़, क़ाफ दाल जबर क़ज़, कौफ दाल जबर कज़, क़ाफ दाल जबर क़ज़, वमा खलकज़, वमा ख़लक़ज़, दाल जबर दा, दाल जबर दा, काफ जबर का, काफ जबर का, ज़का, ज़का, रा जबर रा, रा जबर रा, ज़करा, ज़करा, वमा खलकज़ ज़करा, वमा ख़लक़ज़ ज़करा, वमा खलकज़ ज़करा। वमा ख़लक़ज़ ज़करा। प्यारे बच्चों जाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है मैंने आपको अभी ही बताया कि जाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, यानी खलकज़ नहीं पढ़ना, खलकज़। ठीक है जी। वमा खलकज़ ज़करा, वमा ख़लक़ज़ ज़करा,
واو لام زبر ول واو لام زبر ول حمزہ نون پیش ان حمزہ نون پیش ان ول ان والعن سا کھڑا زبر سا سا کھڑا زبر سا پیارے بچوں سا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی سا نہیں سا کیا ہے سا 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 کھڑا زبر سا سا کھڑا زبر سا والانثى والعنثى والانثى والعنثى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والعنثى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والعنثى سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں ٹھیک ہے؟ جی وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والعنثى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والعنثى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والعنثى سمجھ میں آیا بچوں؟ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے